I'll start with Assam General Assembly Elections 2021. Elections shall be held in 3 phases. First phase, issue of notification, 2nd March. First phase, 47 assembly constituencies, issue of notification, 2nd March. Last date of nomination, 9th March. Scrutiny of nomination, 10th March. Last date of withdrawal of candidature, 12th March. Date of poll, 27th March. Date of counting, 2nd May. I shall not read 2nd May again and again because that is the date of counting is same for all the elections. Am I clear? Can I go to the next? Assam second phase, 39 constituencies. Issue of notification, 5th March. Last date of nomination, 12th March. Last date of withdrawal of candidature, 17th March. Date of poll, 1st April. If it is clear, I can go to next. It's clear? We can even read out the names of assembly constituencies, but that is going to be available to you, right? Assam third phase, final phase, 40 assembly constituencies. Issue of notification, 12th March. Last date of nominations, 19th March. Scrutiny of nominations, 20th March. Last date of withdrawal of candidature, 22nd March. Date of poll, 6th April. Now I go to Kerala. All elections in 14 districts consisting of 140 assembly constituencies to be held in a single phase as follows. Issue of notification, 12th March. Scrutiny of nominations, 20th March. Last date of withdrawal of candidature, 22nd March. Date of poll, 6th April. Am I clear? Go back to Kerala, please. Scrutiny 20th March. Withdrawal 22nd. Date of poll 6th April. Is it okay? By-election to the vacant seat of Malappuram Parliamentary Constituency shall be conducted simultaneously along with the Assembly of Kerala on 6th April 2021. Shall I go to next? General election to Assembly of Tamil Nadu 2021. All elections to 38 districts consisting of 234 assembly constituencies shall be held in a single phase as follows. Issue of notification, 12th March. Last date of nomination, 19th March. Last scrutiny of nominations, 20th March. Last date of withdrawal of candidature, 22nd March. Date of poll, 6th April. If it is not clear to anybody, I can read it again. It's clear?
coming. This was my next slide. Just watch there. Elections to the vacant seat of 39 Kanyakumari Parliamentary Constituency will also be conducted simultaneously along with the assembly elections on 6th April. Right? Puducherry, 2 districts, 30 assembly constituencies to be conducted in a single phase as follows. Actually, when we went to Puducherry, most of the political parties wanted that the election should be conducted along with Tamil Nadu because both sides probably felt unsavory elements coming in from this side or that side. And Tamil Nadu being a far bigger state, this was the only major demand of the political parties in Puducherry. Anyway, I'll read it now. Issue of notification, 12th March. Last date of nomination, 19th March. Scrutiny of nomination, 20th March. Last date of withdrawal, 22nd March. Date of poll, 6th April. Friends, is it clear? West Bengal, 8 phases. Last time it was 7. No, that was, I have the data with me because I have to meet such intelligent people. That was split into 6A and 6B. It was ineffectively 7. It was split into 6A and 6B. You can take the statement from me after this. West Bengal first phase. This will be 30 ACs. 30 ACs. Issue of notification, 2nd March. Last date of nominations, 9th March. Scrutiny of nomination, 10th March. Call of candidature, 12th March. Date of poll, 27th March. And those 5 districts are Purulia, Bankura, Jhargram, Paschim Midnapur Part 1, Purvo Midnapur Part 1. Am I clear? Second phase, again 30 assembly constituencies. Issue of notification, 5th March. Last date of nominations, 12th March. Scrutiny of nominations, 15th March. Last date of withdrawal, 17th March. Date of poll, 1st April. And the districts covered are Bankura Part 2, Paschim Midnapur Part 2, Purvo Midnapur Part 2, South 24 Pargana Part 1. South Pargana Part 1. Are we clear? Shall we go to the next? Third phase, 31 assembly constituencies. Issue of notification, 12th March. Last date of nominations, 19th March. Scrutiny of nominations, 20th March. Last date of withdrawal, 22nd March. Date of poll, 6th April. Phase 4. 44 constituencies. 44. Issue of notification, 16th March. Last date of nominations,
23rd March. Scrutiny of nomination, 24th March. Last date of withdrawal, 26th March. Date of poll, 10th April. The districts covered are Howrah Part 2, Hooghly Part 2, South Pargana Part 3, Alipurdar, all the 5 assembly constituencies, Cooch Behar, all the 9 assembly constituencies. Shall we go to next? 5th phase. 45 assembly constituencies. Issue of notification, 23rd March. Last day of nomination, 30th March. Scrutiny, 31st March. Last date of withdrawal, 3rd April. Date of poll, 17th April. The districts covered are North Pargana, Part 1, Nadia, Part 1, Purbo Bardhaman, Part 1, Darjeeling, complete, all the 5 constituencies, Kalimpong, 1 constituency, complete, Jalpaiguri, all the 7 constituencies. Shall we go next? Phase 6, 43 constituencies. Issue of notification, 26th March. Last date of nomination, 3rd April. Scrutiny of nominations, 5th April. Last date of withdrawal, 7th April. Date of poll, 22nd April. Forty-three. I can read out the districts again, although they are there in the slide in front of you. But I read out again since you asked. North Pargana Part 2, Nadia Part 2, Purbo Bardhaman Part 2, Uttar Dinajpur Part 2. All 9. Uttar, Purbo Bardhaman, all 8, and Uttar Dinajpur, all 9. Shall we go to the next? 7th phase. 36 assembly constituencies. Issue of notification, 31st March. Last date, 7th April. Scrutiny of nominations, 8th April. Last date of withdrawal, 12th April. Date of poll, 26th April. And the districts covered are Malda, Part 1, Murshidabad, Part 1, Paschim Bardhaman, all 9 ACs, Kolkata South, all 4 ACs, Dakshin Dinajpur, all 6 ACs. If you have gone through it, can we move to the last phase? Issue of notification, 31st March. In all 35 constituencies. Issue of notifications, 31st March. Last date of nominations, 7th April. Scrutiny of nominations, 18th April. Last date of withdrawal of candidature, 12th April. Date of poll, 29th April. 35. And the districts covered are Malda Part 2, Murshidabad Part 2, Birbhum Part 2,
all 11 assembly constituencies. Calcutta North, all 7 assembly constituencies. As I said in the beginning only, the counting shall be done on 2nd May 2021. And there are 2 more parliament constituencies, Andhra Pradesh, Tirupati, and Karnataka in Belgaum. Since MCC shall be applicable on the restricted these constituencies because the entire state is not going to election, Mr. Sinha will issue a separate notification for that. Just like they will issue a separate notification for all the by-elections to all the states. We have the figures as follows. We have the number of vacancies, etc. I can tell you, but in all it is 18 plus 4. All the constituencies shall be issued separately by Election Commission. Before I end, भाई बैग चले जाओ. आप 1 मिनट बैठ जाए शिफारी जी. हो गया? Before I conclude this press conference, I should like to place on record the fact that as a citizen, one always respected and looked up to the institution of the Election Commission. Having been inside now for more than 4 years, I think one almost reveres it. I'm thankful to my family and friends, my brothers and sisters who have all been with me, and very, very thankful to both the commissioners we had done it once earlier also somewhere, but that was optics. This is reality. पश्चिम बंगाल में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और विस्तृत तरीके से पूरी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया 27 मार्च को पहली बार, हम आपको बता दें, उसके बाद 1 अप्रैल और ये 6 अप्रैल की आप देख रहे हैं जब वोटिंग होगी. उसके बाद 27 मार्च से देखिए शुरुआत है. मतगणना सब जगह 2 मई को है. उसके बाद सेकेंड फेज 1 अप्रैल, 30 सीटें में उस दिन वोटिंग होगी. इसके बाद जो तीसरा फेज है 6 अप्रैल, उसके बाद चौथा फेज 10 अप्रैल को, पांचवा 17 अप्रैल, 22 को छठे फेज का होना है, 26 अप्रैल को 7वां और फिर 29 अप्रैल को 8वें चरण का मतदान होगा. पश्चिम बंगाल में सबसे विस्तृत 8 फेजेस में चुनाव. बिल्कुल. और असम में 3 चरणों में चुनाव होगा, जबकि केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में एक ही चरण में चुनाव होगा और इन तीनों जगह 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 2 मई को वोटों की गिनती हो जाएगी. असम में 3 चरण, पश्चिम बंगाल में 8 चरण का चुनाव कार्यक्रम अभी अभी चुनाव आयोग ने घोषित किया है. पश्चिम बंगाल में सबसे लंबा चुनाव कार्यक्रम है, 27 मार्च को शुरू होगा, 29 अप्रैल को खत्म, यानी कि 1 महीने से भी ज्यादा लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में वोटिंग चलेगी. असम में 3 चरणों में वोटिंग होगी, जो कि 27 मार्च को शुरू होकर 6 अप्रैल को खत्म हो जाएगी. इसके बारे में विस्तार से जानकारी अभी अभी चुनाव आयुक्त ने दी है. आपको बता दें 2 मई को वोटों की गिनती होगी. 2 मई 2021 को इन 5 राज्यों में नई सरकार किसकी बनेगी, इस बात का खुलासा हो जाएगा. याद रखना बहुत आसान है. सबसे पहले तो मतगणना हर जगह 2 मई को है. दूसरा, असम में अगर हम आपको बताएं तो 27, 1, 6 अप्रैल ऐसी तारीख है जहां सभी राज्यों में या फिर पुडुचेरी में वोटिंग होगी. 27, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल असम. उसके बाद 3 जगहों पर एक ही दिन में वोटिंग होनी है, सभी जगह 6 अप्रैल को. और फिर जब आप देखते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ तो याद रखिए 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक, यानी 1 महीने 2 दिन के अंतराल में 8 फेजेस में वोटिंग होगी. तो सबसे मुख्य दिन जो वोटिंग के लिए इन राज्यों में है वो है 27 मार्च, उसके बाद 1 अप्रैल, फिर 6 अप्रैल. 6 अप्रैल को तो सभी जगह होनी है. और याद रखिएगा 2 मई को पता चल जाएगा
जी हाँ, और इसके बाद 5 चरण बचेंगे पश्चिम बंगाल के। 6 अप्रैल के बाद चौथा चरण होगा पश्चिम बंगाल का 10 अप्रैल को, 5वां चरण 17 अप्रैल को, 6ठा चरण 22 अप्रैल को, 7वां 26 अप्रैल को, 8वां चरण 29 अप्रैल को, और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। 2 मई को तय हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में किसकी सरकार बनेगी। कैलेंडर आपके सामने आज तक ने रख दिया है, इसे याद कर लीजिए। इन 5 राज्यों में कब कब वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 2 मई को होगी, नतीजों का ऐलान 2 मई को हो जाएगा। 8 फेजेस में जो ये पश्चिम बंगाल में वोटिंग कराई जा रही है, वो तारीखें एक बार फिर से आपको बता दें। पहले मैंने आपको बताया था 27, 1, 6, यानी 27 मार्च, 1 अप्रैल और उसके बाद से 6 अप्रैल, लेकिन उसके बाद भी है। और आप देखिए लगभग हर चरण में 30 से लेकर 40-45 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा 5वें चरण में 45 सीटों पर वोटिंग होगी। 2 मई को सभी जगहों के नतीजे आ जाएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन देखिए असम में 3 फेजेस में चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में 8 फेजेस में, बाकी जगहों पर एक ही फेज में, यानी चाहे वो तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, केरल, वो सब हम आपको बता रहे हैं। कई खास मेहमान भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर अब जो ये चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है इन राज्यों में। हमारे साथ जेवीएल इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अभय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पहले तो उनका रिएक्शन ही ले लेते हैं। बिल्कुल जेवीएल साहब, तारीख पसंद आए जेवीएल साहब? हाँ, तारीख पसंद आने कभी भी चुनाव होते हैं, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। और ये तो शेड्यूल पर हो रहे हैं सभी राज्यों में चुनाव। और 6 महीने पहले जब 5-6 महीने पहले जब चुनाव हुए थे, तब केवल बिहार के असेंबली के साथ साथ पूरे देश भर में उपचुनाव हुए थे। उस उपचुनाव के नतीजे उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ था। वही फिर एक बार होने जा रहा है। आज की जो घोषणा हुई इन चुनावों में भी, तो भारतीय जनता पार्टी का तो जीत की श्रृंखला बरकरार रहेगी और हमें बड़े जीत प्राप्त करेंगे इन सभी राज्यों में, क्योंकि देश की जनता मोदी जी के सरकार के कामकाज से, मोदी जी की नेतृत्व से बोलते आप बोल रहे सभी राज्यों में कि भारतीय जनता पार्टी का जीत निश्चित है। जेवीएल साहब थोड़ा ठीक लगा लीजिए, आपने तो एकदम सभी राज्यों में कह दिया कि चुनाव हो रहे हैं, 5 में जीत जाएंगे हम। नहीं, देखिए तमिलनाडु में हम अकेले नहीं लड़ेंगे गठबंधन के साथ, और केरल में इस बार हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल अभूतपूर्व होगी। इस प्रकार हम पूरी तरह हम आश्वस्त हैं। और पुडुचेरी में तो तमिलनाडु में ज्यादातर हम कोएलिशन में ही कंटेस्ट करते हैं, तो इसलिए मैं सभी राज्यों में केरल समेत इस बार हमारा अच्छा प्रदर्शन केरल में भी रहेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी शानदार प्रदर्शन होने वाली है। अभय दुबे जी, आप तो चाहकर भी 5 नहीं बोल सकते। देखिए मैं समूचे 5 राज्य के 18 करोड़ 68 लाख मतदाताओं को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। उन राज्यों के उज्जवल भविष्य के लिए वो सरकारों का निर्धारण करे। चुनाव आयुक्त ने एक बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी आज, उन्हें बातें नहीं आती जो काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सिर्फ बातें बनाते हैं, काम नहीं करते। ये जीवीएल जी, आपने देखा नहीं पिछले चुनाव के परिणाम? आपने तमिलनाडु में 234 सीटें लड़ी थी, आपकी सीट 0 आई थी। वेस्ट बंगाल में 291 लड़े थे, 3 सीटें आई। पुदुचेरी में 30 लड़े थे, 0 सीटें आई। केरला में 98 लड़े थे, 1 सीट आई। सिर्फ असम में 84 लड़े और 60 आई। इस बार के परिणाम एक लाइन में आप पढ़ लीजिए। पुडुचेरी, केरला, तमिलनाडु में। एक सेकंड दुबे जी, आप कमाल करते हैं दुबे जी। जिस दिन चुनावी नतीजे आते हैं उस दिन चुनाव आयोग को खूब कोसते हैं, और जिस दिन तारीख का ऐलान हुआ है तो आज उनकी शायरी कोट कर रहे हैं। याद रखिएगा बस। नहीं, देखिए ना, चुनाव आयुक्त ने कहा है कि अप्रैल में वो विदाई लेने वाले हैं। इन 5 राज्यों के बाद भाजपा का पराभव और विदाई प्रारंभ होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं एक पंक्ति में, सिर्फ तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला में सुपड़ा साफ, असम में हाफ, और बंगाल में जनता इनको नहीं करेगी माफ। जिस वैमनस्य की राजनीति को इन्होंने आकार दिया है, विश्वास मानिएगा। 6 चरण में थे तो 3 सीट, 8 चरण में है तो क्या हाल होगा ये जान लीजिए। मुझे याद है ये हाफ और साफ वाला नारा आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी दिया था,
कौन हाफ हुआ और कौन साफ, उसका नतीजा लोगों ने देख लिया था। कहीं नारा महंगा ना पड़ जाए, नया तो बना लेते कम से कम। नहीं रोहित जी, ये समूचे देश के युवाओं का नारा है, क्योंकि बेरोजगारी से त्रस्त हैं। किसान जार जार आंसू बहा रहे हैं, सड़कों पर फेंक दिए गए। और आज 8 करोड़ छोटे व्यापारियों ने हड़ताल रखी है। जीवीएल जी, आपसे नाराज होकर देश की इस नाराजगी का खामियाजा आपको इन 5 राज्यों में भुगतना पड़ेगा, याद रखिए। ठीक है जी। जीवीएल साहब बोल लीजिए, फिर संगीत रागी बोलेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर चुनाव के पहले बड़े बड़े बातें कहते हैं, नतीजे आने के बाद गायब हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़े बड़बोला कौन है? सबसे आपके नेता राहुल गांधी ऐसे बड़े बड़े दावे कर फिर दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस बार भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मई 2 के पहले ही वो इटली चले जाएंगे, फिर छुट्टियां मनाने के लिए चले जाएंगे। ये आपके नेता कम से कम चुनाव रैली तक नहीं पहुंच सकते हैं। केरल में भी पूरा चुनाव में भाग लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी नेता को, आपकी पार्टी को मालूम है राहुल गांधी को कोस कर, और एक बात, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा राहुल गांधी को कोस कर नहीं फायदा होने वाला है। ये देखिए ना, ममता बनर्जी की तस्वीर है, जबरदस्त तरीके से ताकत झोंक रही है। और तमिलनाडु कैसे ले लीजिएगा सर? 5 में से 5 कहां से आ जाएगा? केरल में, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको संघर्ष करना होगा क्षेत्रीय पार्टियों से, और तमिलनाडु में तो क्षेत्रीय पार्टियों का ही बोलबाला है। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। रागी जी, आज इतने जोश में दोनों बस चले तो तमिलनाडु भी जीत ले, जहां पर नामो निशाना है। नहीं, लेकिन तमिलनाडु अंजना जी, जो आपने बोला, सॉरी, बोलिए अंजना जी, आपने जो बोला, मुझे वो सलमान खान की वो फिल्म का वो डायलॉग याद आ गया। थोड़ा सा इसमें एक वर्ड सिर्फ हटाना है। पांडे जी, आप बड़ी कमाल करते हैं। तो आपने सिर्फ इतना बोला कि दुबे जी, आप भी बड़ा कमाल करते हैं। अब ये जितने राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मुझे लगता है कि एक केरला को छोड़ दीजिए और पुडुचेरी, बाकी बगैर तो कांग्रेस पार्टी कहीं भी चुनाव में है ही नहीं। अभी दुबे जी ऐसा कह रहे थे कि 8 करोड़ व्यापारी लोग हड़ताल पे हैं, ये सारा आपका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के जमाने में कभी हड़ताल हुआ ही नहीं हो, न व्यापारियों ने हड़ताल किया हो, न किसान आंदोलन रहा हो, न कुछ और भी ऐसी घटनाएं। उसी का नतीजा तो भुगत रहे हैं लोग बैठ के। बात यह है कि इसीलिए तो उन्हें उसमें उम्मीद दिखती है कि अगर ये बाहर हो सकते हैं उसकी वजह से, तो दूसरा भी हो सकता है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का ही खेल है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देना होगा कि पश्चिम बंगाल और आसाम, इन दोनों जगहों में ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई अब जाकर के आज के दिन में कोई वजूद रहा है। कांग्रेस पार्टी जहां जहां भी तीसरे या चौथे नंबर पर गई है, वहां से कभी भी दूसरे पायदान पर और पहले पायदान पर खिसक करके नहीं आ पाई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए कोई संभावनाओं के द्वार यहां तो इन दोनों राज्यों में नहीं है। ठीक है, दक्षिण में हम यदि चलते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ग्राउंड से हमारी रिपोर्टर जुड़ गई हैं पश्चिम बंगाल कोलकाता से सीधे, और मुझे लगता है पौलमी आप बीजेपी दफ्तर में हैं मौजूद। स्मृति ईरानी का आपका इंटरव्यू देखा था हमने, वहां पर ममता बनर्जी सीख रही थी कि कैसे स्कूटी वो चला सके। कई लोग मदद कर रहे थे लेकिन हो ना पाया। आज स्मृति ईरानी ने करके एक संकेत देने की कोशिश है और वो कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पर हमें ही बैठना पड़ेगा। घमासान तारीखों का ऐलान। जी बिल्कुल, अब अंजना पूरी तरह से कैंपेन शुरू हो गया। वैसे तो हम पश्चिम बंगाल में ये कह सकते हैं कि कैंपेन चल ही रहा था काफी वक्त तक, बस डेट्स के अनाउंसमेंट की का इंतजार था। पर अब आप कह सकते हैं कि पूरा घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। आज ही स्मृति ईरानी यहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने भी स्कूटी पर बैठकर एक रैली निकाली जिसमें काफी बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक जुड़ गए थे। और स्मृति ईरानी का कहना है कि ड्राइवर सीट में तो हमें ही बैठना है, तो इसलिए तृणमूल चाहे जितना मजाक उड़ा ले, कह ले कि हम
ममता बनर्जी की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कल स्कूटी पर अपने दफ्तर गई थी, तो हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ हमेशा खड़ी रही हूं, चाहे वो रथ पर हो या फिर बाइक पर हो या पैदल ही हो। और यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी है, तो इसलिए भाजपा उनके समर्थन में खड़ी है और भाजपा ही इस बार सत्ता में आएगी। अंजना, लेकिन पौलमी, चुनाव का प्रोग्राम जितना लंबा है, 8 चरण, 1 महीना 2-3 दिन तक चलेगा। नेताओं के लिए तो डेटशीट है ही, रिपोर्टर्स के लिए भी डेटशीट बहुत लंबी है ये। रोहित, जैसा मैं आपको बता रही थी, हमारे लिए तो कैंपेन काफी वक्त से ही चल रहा है। एक तरह से ये इलेक्शन पहले कुछ महीनों से ही चल रहा है। हम तो बात ही करते थे कि ये इलेक्शन ऑलरेडी पीक कर चुका है। रोड शोज हो चुके हैं, रैलीज हो चुके हैं, जिस तरह का घमासान आपने सड़कों पर देखा है, क्लैशेस तृणमूल और भाजपा के बीच, वो भी हो चुका है। वायलेंस ऑलरेडी इस इलेक्शन ने देख लिया है पहले ही, डेट्स के अनाउंसमेंट से पहले। सो इसी वजह से जो निर्वाचन आयोग है, उनकी जो जिम्मेदारी है, उनका जो रोल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 8 फेजेस का इलेक्शन इसीलिए हुआ है, जो भाजपा की डिमांड थी कि 8 फेजेस में ये इलेक्शन कीजिए इलेक्शन कमीशन के सामने, क्योंकि उनका कहना था कि सेंट्रल फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो एक गली कूचे में। इस वजह से आप छोटे छोटे फेजेस में करोगे तो ये आसान रहेगा, जिस तरह से हम डिप्लॉय कर सके। बहरहाल उनका वो ये भी कहना है कि जो स्टेट पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। तो अब देखना होगा, क्योंकि अब सारा कुछ जो है दारोमदार इलेक्शन कमीशन पर आ जाता है, तो सब कुछ उनके अंडर है, अंडर देयर वॉचफुल आई। तो वो इससे किस तरह से संभालते और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किस तरह से कराते, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा सुनील अरोड़ा के लिए। बिल्कुल हिमांशु, अभी तो फरवरी का महीना चल रहा है, 27 से वोटिंग शुरू होने वाली है, और जो घमासान अभी से हम देख रहे हैं, टीएमसी वर्सेस बीजेपी, वो और भी पीक करेगा इस 1 महीने में। पूरा टाइम मिला है, 8 फेजेस उसके आगे, 1 महीने से ज्यादा में चुनाव। देखिए बिल्कुल जिस तरीके का कैंपेन अभी चल रहा है, उस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव का नजदीक आता जाएगा, पहला फेज नजदीक होगा, वैसे वैसे जो है कैंपेन तेजी से बढ़ता जाएगा और इस तरीके की बयानबाजियां आपको देखने को मिलती रहेंगी। इस तरीके से राजनेताओं के जिस रैलियां आपको देखने को मिलेंगी और एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी तो निश्चित तौर पर होगी। और क्योंकि बंगाल का चुनाव है और इस बार का चुनाव 2016 या इससे पिछले जितने चुनाव है उनसे बदला हुआ आपको नजर आएगा। जिस तरीके से आपने 2019 का लोकसभा चुनाव देखा था, उसी तरीके तर्ज पर जो है 2021 में विधानसभा चुनाव बंगाल में आपको नजर आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि असम में 3 फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी की वहां पर सरकार है, वहां उनको अपनी सत्ता को बचाना है और बंगाल में उनको सत्ता को छीनना है, और वो भी तब जब 70 साल से जो है बीजेपी बंगाल के अंदर सरकार बनाने का सपना सोए हुए है। शायद इस बार पूरी बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है कि बंगाल में उनकी सरकार बने। और इसीलिए आप देखिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में, अंजना, मैंने पहले भी कहा था कि 18 लोकसभा सीटें जीती थी बीजेपी ने। बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए वहां विक्ट्री थी और 40% से ज्यादा का मत प्रतिशत बीजेपी ने हासिल किया था। यह बीजेपी की एक बहुत बड़ी विक्ट्री के तौर पे देखा गया था। लेकिन बीजेपी के लिए एक चीज जो है वो शायद बहुत दुखती रग है कि वहां बीजेपी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी है जो स्ट्रीट फाइटर मानी जाती है, जो बहुत ये कहा जाता है कि जमीन पर लड़ने वाली मानी जाती है। और बीजेपी के लिए अगर कहीं कोई एक कोना है जहां पर ममता बनर्जी हिट कर सकती हैं, तो वो यही कोना है कि उनके सामने फेस कौन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री। चलिए, धन्यवाद हिमांशु और धन्यवाद पौलमी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का भी, क्योंकि वक्त अब एक ब्रेक का हो चला है। चुनाव आयोग ने पूरा ब्रेकअप दे ही दिया है कि कब कब चुनाव होगा, किस किस चरण में कहां कहां वोटिंग होगी, उस पर विस्तार से चर्चा होगी।